Hello, my friend. Namaskar. So, in this video, we are going to see Python MCQs question and which are very vital from examination. So, if you take any example of any exam, maybe of examination of IBPS, maybe examination of UBI, maybe the examination of the CB, maybe the examination of uh, NABARD, maybe examination of your OICL, OICL, or any exam. So nowadays the examiner is main focus on OOPS concept. In the OOPS concept, we are having so many languages. So one of the language is Python, and which is famous. Why? Because of AI and ML. Because of AI and ML. So here we are going to see only and only MCQ questions. If you know Python, it is good. If you don't know Python, then only it is good. But you have to know any language. If you know C language or you know C++ language, or you know Java, or you know JS, or you know Angular JS or React JS, maybe you know PHP, maybe you know ASP.NET, any programming language you know, then you don't need to learn the Python here. We are going to see the MCQ, and I can guarantee you 100% one question minimum you will see in your exam as it is. हो सकता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो 60 कर दे, 70 कर दे, बस, बट thing will be the same. So every question I am going to explain to you and you need to give the answer here. So जो भी आपको ठीक लगे, you need to give the answer here. Okay, so let's make this session interactive. Okay, answer दे भी दिया. Okay, and I will explain also. So if you need any explanation of any answer, please let me know. I will try to explain. Also, I can make mistakes. So if you know Python very well, because I have learned this language approximately 7 years ago. Approximately 7 years ago, I have learned this. Now I completely forgot. So my now main focus on another programming language. So I forgot, but basic I know. So I will try to give you an idea about this language. Okay. So the first question, the answer given by the student D. Okay. So I guess D is right. So if you need any explanation, please let me know. किसी को explanation चाहिए? Anyone need explanation? Please type yes. I will explain. Then I will move forward. Anyone need explanation? Yes. Okay. One yes. So I have to explain. Okay. So see, we are having an array. So in any programming language, कोई भी programming language उठा लो दोस्त, उसमें array होता है. इसमें क्या होता है? इंडेक्स होते हैं. इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4. इसने बोला कि सर जो -2 इंडेक्स है मुझे वो चाहिए. अब आपने कहा सर ये इंडेक्स तो प्लस में है. अगर ये लिखता डेटा 1, तो हमें ये पता लग गया कि ये बात कर रहा है ऑफ 20. ठीक है सर, इसने माइनस में लिख दिया, इसका मतलब यहां से आप स्टार्ट करो, -1, -2, -3, -4, लाइक दिस. तो -2 क्या है? तो -2 क्या है आपका? 40. सो आंसर विल बी द 40. ठीक है, इट इज क्लियर. द स्टूडेंट हु हैव आस्क्ड क्वेश्चन. यस, इट इज एरे लिस्ट. ओके, ठीक है. इसको लिस्ट कहते हैं. ओके. संदीपन, इट इज क्लियर टू यू? ओके, गुड. ठीक है, एरे लिस्ट. ठीक है, सो आई विल स्पीक एरे, तुम, बिकॉज आई लाइक एरे, सो लिस्ट होता होगा. सो प्लीज बी रीड दिस. ठीक है, लिस्ट बोलने की मेरे को आदत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन वी आर हैविंग एरे. Again we are having array. So see, after array we will solve the questions of file reading also. क्योंकि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इसका भी आएगा, फाइल रीड का भी आएगा ही आएगा. तो अपन को फाइल रीडिंग वाले जो क्वेश्चन है वो भी अपन देखेंगे. पहले array वाला देखते हैं. सेकंड किसी का आंसर आया? सेकंड का सी 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 सी. गुड. एवरीवन इज गिवन सी. एनीवन नीड एक्सप्लेनेशन? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? तो बस इसमें इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसने बोला 1. 1 कहाँ पे है सर? 1 ये रहा. 1 से 4. 1 से 4. अब इसमें क्या होता है? ट्रिक होता है. ये जो इंडेक्स है इसको आप n कह लो, n-1 लेना. ये याद कर लो, इसको याद कर लो. n-1 तक प्रिंट करेगा. कितना तक प्रिंट करेगा? n-1 तक प्रिंट करेगा. इसका मतलब अगर मैंने लिखा है 1:4, इसका मतलब वो कितना प्रिंट करेगा? 1 से लेके 3 तक प्रिंट करेगा. मैंने लिखा है 1:5, सॉरी कॉलन, इसका मतलब कितना प्रिंट करेगा? 1 से लेके 4 तक. n-1 ये याद कर लेना. तो 1 से लेके 3 तक प्रिंट करेगा. इसका मतलब b
सी डी को प्रिंट करेगा. सी विल बी द आंसर. ओके, इट इज क्लियर. So the first answer given by Ashish, Anish, very good, nice. ठीक है, moving ahead next. If you need explanation, please let me know. I will explain. एग्जाम में गलती मत करना. नेक्स्ट क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, रिपीटेशन नहीं दिखेगा आपको. बट ये है एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्त. अगर ये ऐसा गिवन हो इसका मतलब एंड ऑफ एरे. अब इसको आप लिस्ट कह लो, बट मुझे लिस्ट की आदत नहीं है. आई हैव हैबिट ऑफ एरे, आई लाइक एरे. सो एंड ऑफ एरे, तो -3 से स्टार्ट कर लो, आप एंड ऑफ एरे तक आ जाओ. आपका आंसर आ गया दोस्त. 4 5, वेरी गुड सुभाष. सी सी सी, फर्स्ट आंसर किसका आया था? रॉक फॉर यू, वेरी गुड. रॉक फन, नाइस. रॉक फन का आंसर है. ओके, एनी वन लीड एक्सप्लेनेशन, लेट मी नो. एक्सप्लेन, जस्ट एक वर्ड लिखना है आपको, एक्सप्लेन. आई विल एक्सप्लेन. ओके. ओके, योगेश नीड एक्सप्लेन, है ना? नॉट एक्स. योगेश, इसमें कुछ नहीं होता. इसमें क्या, दिखने में अच्छा नहीं लगता. मान लो उसने लिख दिया -2, और यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब ये मान लो एंड लेंथ ऑफ एरे, टिल लेंथ ऑफ एरे, मतलब एरे की जो लेंथ है वहां तक आना है, या आप कह सकते हो एंड ऑफ एरे. जहां तक एरे भैया वहां तक आप उस नंबर को प्रिंट कर लो. अब क्या, यहाँ पे माइनस में, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, -1 -2 -3. इसने बोला कि -3 की वैल्यू ले लो, मतलब 4. 4 से ले लो एंड ऑफ एरे. 4 के बाद क्या है, 5 है, उसके बाद 6 है. तो ये क्या प्रिंट करेगा, 4 5 6. अगर इसके मान लो आगे 7 8 9 होता तो उनको भी प्रिंट कर ले. तो 4 5 6 इज द आंसर. ओके योगेश. योगेश, इट इज क्लियर टू माई फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन अलग अलग है. एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा फंसेगा ही फंसेगा, 100%. फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? डी. डी 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 डी, यस, डी विल बी द आंसर. अब देखो इसमें होता है क्या है, कि अगर आप यहाँ पे इंडेक्स के साथ गेम खेल रहे हो, अगर आप इंडेक्स के साथ में गेम खेल रहे हो, बट यहाँ पे क्या, स्टार्ट आपका क्या है, स्टार्ट आपने कह दिया सर, स्टार्ट. स्टार्ट कह दिया कि सर 1 से स्टार्ट कर लो, और ये आपने एंड कह दिया. स्टार्ट कह दिया, एंड आपने कह दिया. अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको रिवर्स के लिए कह रहे हो. तो जब आप इसको रिवर्स में आप जाओगे, तो उल्टा करना था. तो ये जो इंडेक्स है, स्टार्ट है, स्टार्ट इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इंडेक्स. ये याद करना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा, ये इनका सिंटैक्स है, ये याद करना पड़ेगा. यू नीड टू रिमेंबर इट. स्टार्ट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एंड से. अगर स्टार्ट ग्रेटर नहीं है तो वो क्या करेगा, रिवर्स में एम्प्टी ले आए. एम्प्टी ले. अगर आपको यहाँ पे रिवर्स तक करना तो आपको यहाँ पे 5 लिखना था, या आप 4 लिख सकते थे. 4 आप ऐसे 1 लिख सकते थे. उसके बाद आप यहाँ पे लगा के अगर एम्प्टी करना एम्प्टी कर सकते, देन इट विड बी गुड. ओके, स्टार्ट स्टॉप फॉलो करते हैं, यस. ओके ओके, थैंक्स. मूविंग अहेड, फिफ्थ क्वेश्चन.
अब इसमें आप याद कर लो कि व्हेन वी प्ले विद द एरे और लिस्ट, तो इट इज हैविंग ऑटो एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। आपने कहा कि सर 3 से प्रिंट करना है, 0 1 2 3। आपने कहा कि सर प्रिंट चाहिए मेरे को 3 से लेके यहां तक प्रिंट करना है। अब इसके बाद सर इंडेक्स ही नहीं है, इंडेक्स ही नहीं, तो अब आपको ये लगेगा कि सर ये एरर दे देगा, इंडेक्स एरर देगा। बट इसमें मैंने आपको बताया ये ऑटो, इसके अंदर इम्प्लिसिट एक होता है, एक्सप्लिसिट एक होता है इम्प्लिसिट। सो इट इज हैविंग द इम्प्लिसिट एक्सेप्शन हैंडलिंग, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो इट इज गोइंग टू हैंडल एक्सेप्शन एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस वन। कोई उसके आगे कुछ होता इट विल प्रिंट, बट इट इज हैविंग ओनली दिस। इट्स सो व्हाई बी इज राइट। के फिफ्थ का बी देखते हैं किसने दिया। नहीं दोस्त, नहीं बी आएगा, ये याद करना पड़ेगा आपको, बी आएगा। ठीक है। इट विल रेज एन एरर, इट विल रेज एन एरर, एरर आपको देगा, ये एरर देगा। बट ये क्या करेगा, बट जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कहीं दिख जाए तो आप, इसका क्या मतलब होता है ऐसा। लास्ट वाला एक्सप्लेन करो एक बार। विच थिंग, फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, मैंने लिखा कि 1 2 3 4 5। मैंने कहा कि सर मेरे को वैल्यू चाहिए 2 से लेके 10 तक। अब आपने कहा कि सर 2 से तो मैं ले आऊंगा, बट मेरे पास ये जो वैल्यू है ये नहीं है, एम्प्टी है। बट ये जो मेरा एरे है जिसको लिस्ट कह लो, इसकी लेंथ ही इतनी है, तो ये क्या करेगा, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेगा। सो इट विल प्रिंट द वैल्यू जहां तक इसको मिलेगा, जहां तक इसको मिलेगा डेटा उतना प्रिंट कर देगा। आगे ये, इसको इंडेक्स नहीं है तो इसकी वजह से इंडेक्स एरर नहीं देगा, ये इम्प्लिसिट हैंडलिंग हैंडलिंग कर लेगा, यहाँ पे इनबिल्ट एरर हैंडलिंग कर लेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल गिव यू द आउटपुट, आउटपुट दे देगा ये आपको। तो यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है ये, इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका ये आएगा, बी आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ओके सिंटेक्स सर, वाला थैंक यू। गेम है। तो इसमें आपको कोई भी लैंग्वेज का कुछ ऐसा बैरियर नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर समथिंग। अब जैसे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस इसमें कुछ कुछ आपको चीजें याद करनी पड़े, यू नीड टू रिमेम्बर। अगर ऐसा दिख जाए, -1 दिख जाए, इसका क्या मतलब निकलता है, याद करना पड़ेगा। इसका मतलब रिवर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है। REVERS। इसका किसी का आंसर आया, सिक्स्थ का सी द फर्स्ट आंसर गिवन बाय शुभम। नाइस शुभम। यू नीड एक्सप्लेनेशन, आई विल एक्सप्लेन। बस इसमें कुछ नहीं, याद को याद करना पड़ेगा। इसमें देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने नहीं है बनाई, ये सिंटेक्स है दोस्त, ये सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा। और एग्जाम में सिंटेक्स ही पूछेगा वो आपसे। ये एक बार आप देखोगे ना, देखो ये क्वेश्चन है, आपने एक बार देख लिया, ये जैसे वीडियो एंड हो जाए एक बार और देख लेना बस। फिर आपको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट एनीवेयर। it will automatically going to store in your subconscious memory, it will automatically going to store in your subconscious memory whenever the same question will come in the examination, it will automatically going to a trigger, yes हाँ यार ये ऐसी चीज देखी थी, इसमें ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें थोड़ा सा ट्रिक है,
अभी अपन ने देखा था लास्ट क्वेश्चन से ट्रिक ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा। पहले आंसर आया आपका किसी का? सेवंथ का? सेवंथ का ठीक है। सेवंथ का आंसर क्या है मेरे हिसाब से? सेवंथ का आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन तो आपका ए और डी सेम ही है, तो ए डी इसका आंसर कर लो। ऑप्शन इसमें सेम है, ए डी। तो ए भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, सेम है। अब इसमें हो क्या रहा है, अगर आपने थोड़ा ध्यान से वीडियो देखा तो फिर आप लुक द क्वेश्चन केयरफुली। मैंने एक चीज बताई थी यहाँ पे आपको, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। n-1 इसको याद कर लो। ये चीज मैंने आपको चीज अभी बताई थी, याद कर लो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है दोस्त। ने कहा 1:3, 1:3। इसका मतलब क्या है, n-1। इसका मतलब एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, 1 और 2 कह रहा है। 1 और 2 की ये बात कर रहा है, इसका मतलब 1 और 2 क्या है, ये आपका 1 और 2। ये किसकी बात कर रहा है, 1 और 2 की बात कर रहा है, राइट। ये कह रहा है 1 और 2 में इस वैल्यू को इंसर्ट कर दो। इसका मतलब 1 और 2 में इसको इंसर्ट कर दो, 10। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये आपकी आएगी कहाँ पे, 1 और 2 में। तो जहाँ 20 और 30 उसको रिप्लेस कर दो किससे, 22, 23, 44 से। उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू है 40, 50, उसको एज इट इज लिया 40, 50। तो आंसर क्या हो गया, 10, 22, 23, 44, 40, 50। लेंथ क्या है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ कितनी है, 5। अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? सेवेंथ। हाँ भैया, इसमें 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 कुछ भी हो जाता है पाइथन में। इसमें हो जाता है मेरे हिसाब से। इसमें सब चलता है पाइथन में। अभी मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट इसमें इसमें कुछ भी हो जाता है, इसलिए मेरे को अच्छा भी नहीं लगता पाइथन। बट ये है बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा है, इसका आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए आपका, ध्यान से करना है इसको, ध्यान से करना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ध्यान से करना है इसको ना। थोड़ा सोचना है इसमें, जस्ट यूज योर ब्रेन। ऑप्शन शायद दोनों सेम है, इसको आप क्या कर लो, इसको बी कर लो ना। आप बी कर लो, इसको बी कर लो। ऑप्शन आपका सेम हो गया यहाँ पे, इसको बी कर लो। सी और डी, यस यस यस, सब स्मार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन क्या हो रहा है। सर ये कह रहा है इंडेक्स। इंडेक्स इसका मतलब ये जो लिस्ट है या एरे है, इसका इंडेक्स कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स। इसका मतलब जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। ये जो वर्ड है इसकी बात हो रही है। ये वर्ड मैंने लिख लिया, क्या वर्ड है, बी ए एन ए एन। अब ये कह रहा है इस वर्ड का भी वापस इंडेक्स लेके आओ। इस वर्ड का भी इंडेक्स कौन सा, दूसरा इंडेक्स। जीरो इंडेक्स पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स। इसका मतलब इस वर्ड का भी दूसरा इंडेक्स कौन सा, एन। इसकी बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। वर्ड का वर्ड, ठीक है। आई होप संदीप इट इज क्लियर, ओके। तो आंसर किसने दिया था इसका सही, सी, रॉक्स। रॉक्स का आंसर सही है, ओके यस। शुभम, वेरी गुड शुभम। नाइन्थ।
देखो इसमें अब याद क्या करना पड़ेगा। यहाँ क्या कर रहा है, ये गेम खेल रहा है, किस पे कह रहा है, स्टेप्स पे। ये कह रहा है कि इंडेक्स इंक्रीमेंट बाय 2 और स्टेप्स, स्टेप +2। ये कह रहा है कि सर स्टेप आपको +2 करना है, किस में करना है, 10 20 30। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टेप 1 एक छोड़ना है, दूसरा लेना है। स्टेप 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक छोड़ना है, तीसरा लेना है। स्टेप 4, ये जो इंडेक्स है 0 2 4, इस पे गेम खेलना है। इस पे आप इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ये जो 10 है किसको रिप्लेस कर देगा, 0 को, ये आ जाएगा 10। 20 किसको रिप्लेस कर देगा, 3 को, 20 आ जाएगा। 30 किसको रिप्लेस करेगा, 5 को, ये आ जाएगा। इस पे इंडेक्स गेम खेल। अब न्यू एरे बन क्या जाएगा, न्यू एरे बन जाएगा 10 2 24 36। ये याद करना पड़ेगा दोस्त, ये ट्रिक है। जो आपको अच्छा लगे, जैसा स्टेप काउंट इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेम्बर इट। एक बार देखना, ऐसे क्वेश्चन है ना, आप मुश्किल से ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे आपके 10 टाइप के होंगे, जस्ट 10 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और पूरा का पूरा आपको ऐसे क्वेश्चन, 10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। 1 मार्क्स आपको एग्जाम में देके जाएगा, 1 नंबर देके जाएगा मुफ्त में। हो सकता है 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 1 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 9 का किसी का आंसर आया था, डी। डी किसी का आया, वेरी गुड जय, नाइस। क्या बात है जय, स्मार्ट, जय स्मार्ट। अनीश का भी डी आया, नाइस। अभी देखो अपन ने चीज देखी थी, ये वाली चीज याद हो तो, अभी अपन ने देखी थी ये वाली चीज, याद है क्या। अब देखो चीजें रिपीट हो रही हैं। नाउ जस्ट सी, थिंग्स आर गेटिंग रिपीट। देखो हमने देखा था इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, -1 -2 -3। इसने कहा सर स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 1, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। एंड इंडेक्स, एंड, एंड बोले तो एन, n-1 हमने देखा था। इसका मतलब अगर n ये है, आपका n ये है, इसमें से एक आपको माइनस करना है, तो आप कहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओ। यहाँ से लेके यहाँ तक कि क्या बन जाएगा, ग्रीन ब्लू येलो, ग्रीन ब्लू येलो। आंसर विल बी द ए। ठीक है। किसी का ए आया, बी और बी सेम है क्या, बी और बी, अच्छा सेम है क्या, ओके, तो बोथ को कर लो। ए, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड, ऋतिक का आंसर आया, नाइस। ऋतिक, आई रियली अप्रिशिएट। देखो अभी अपन ने चीज देखी थी यार दोस्त, ऐसे मत करो यार तुम। यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूंगा, आपने नहीं देखा था कि अभी यार 1 3 ऐसे लिखा है, इसको क्या मतलब होता है, सर एन होता है, n-1 है। इसका मतलब हमें 1 से लेके 2 तक वैल्यू लेनी है, ये चीज देखी थी ना। वही चीज कर रहा है ये दोस्त, वही चीज कर रहा है ये। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। अब चीजें हमने देख ली है, वो उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है। ओके, यस श्योर, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। सर, यस, अगर -3, 4 कर देते तो ब्लैंक आता ना, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब आएगा ना, प्रिंट होगा, ऐसा अभी कुछ अगर आएगा, करें आगे तो। आएगा क्वेश्चन, ऐसा आएगा। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने लिखा कलर 1, इसका इसमें आउटपुट क्या आएगा मैं बताता हूँ एक बार। बस एक बार देखना, 0 1 2 3, इंडेक्स है। मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ग्रीन है। ग्रीन से लेके ये एन है, n-1, इसका मतलब 3 तक लेना है मेरे को। जो भी इंडेक्स है उससे एक कम लेना, एक कम, एक कम। तो जी है, जी के बाद बी है, उसके बाद में वाई है, पी है।
इसने बोला सर एक कम लेना मतलब पी नहीं लेना, आंसर क्या हो जाएगा, GB Y। अब यहीं पे ये कह देता है सर कलर 1 से लेके -1, इसका मतलब स्टार्ट इंडेक्स क्या है 1, यहाँ से उठाना है। अब -1 क्या है, मतलब यहाँ से वापस आ जाना, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब -1 कौन सा इंडेक्स सर, ये वापस यही आ गया। इसका मतलब ये नहीं लेना, इससे जस्ट एक जो पहले वाला है ये y, ये लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस GB Y आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसने मान लो यहाँ लिख दिया था 3, लिख दिया था 1, 3 लिख दिया होता, इसका मतलब n-1, इसका मतलब 1 से लेके 2 तक ही लेना है। तो इसका मतलब क्या, ग्रीन और ब्लू, सिर्फ आंसर आता है ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू। रिवर्स में कैसे होता है? हाँ, रिवर्स में कैसे 2 से लेके -5 लेते हैं हम? 2 से लेके -5 तक, ये 2 है, और -5 तक है, ये है। तो इस केस, -4 तक में मान रिवर्स लो लेते हैं क्या? -5 भी लेते हो ना, मेरे हिसाब से रिवर्स नहीं जाएगा यार, ये देखना पड़ेगा इसको ना, देख लेते हैं ना, अभी देख लेते हैं, इंतजार क्यों करना, अच्छा क्वेश्चन है देखो। पाइथन ऑनलाइन फ्रॉम, ला 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 ला। तो एक्सपेरिमेंट आपको खुद को करना पड़ेगा, आपने ऐसे पूछा, आई रियली अप्रिशिएट, वी नीड टू डू द एक्सपेरिमेंट बाय आवर सेल्फ। बोला कि डिफाइन ए करो, प्ले करो, उसमें मुझे मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू प्रिंट कर। इंडेंटेशन या एरर? सर वो प्रिंट का पहले स्पेस मत दीजिए। आ दिया ना स्पेस तो, अरे ये नहीं चाहिए मेरे को, इनपुट नंबर 2। वो कमेंट आउट करिए पहले ऊपर वाला इनपुट। देखो अपन को इससे मतलब था, ग्रीन ब्लू येलो आ रहा है आपका, है ना। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसने किसी ने बोला था इसको -4 कर दो, है ना। -5। यार लो यार, -5 -5 यहाँ तक आ गया, तो इसने नहीं दिया क्योंकि ये रिवर्स में नहीं गया आपका, एम्प्टी एरे आ गया। इसमें और कुछ इनपुट देना है आपको, रिवर्स में नहीं जाता है। कुछ और इसमें रखूं मैं, -3। लो -3, तो देखो -1, -2, -3, और उसमें से एक आप हटा दो, 1, 3 है, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट, देखो ये तो ठीक था, देखो इसने बोला कि स्टार्ट इंडेक्स ये है और एंड इंडेक्स भी यही है, तो मतलब यही मुझे वैल्यू चाहिए। और कुछ इनपुट किसी और का, एग्जाम में गलती मत करना दोस्त, यहाँ पे देखो हिट एंड ट्रायल आपको खुद को करना है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन, सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी पेस्ट कीजिए, कंफ्यूजन है। सर बिल्कुल, सर दोनों में ही है। सर दोनों में अगर माइनस आ जाए तब कैसे होगा? तो दोनों माइनस कर देते हैं, एक को आपको कर देते हैं -3 कर देते हैं, और एक को -1 कर देते हैं। इसने कहा कि -3 मतलब ये वाला ब्लू, ये -3 है, ब्लू से आ जाओ। इसने कहा -1 तक मतलब ये वाला, इससे n माइनस मतलब यहाँ पे, इसका मतलब ब्लू और येलो मेरे को चाहिए, ठीक है। -3 -5 करना एक बार। मुझे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने यार। रिवर्स में जाता है क्या, वो चेक करना था। रिवर्स में मेरे हिसाब से नहीं जाता है, बट ये -5 के आगे -1 लिखेंगे तब जाएगा ना। -5 स्टेप की जगह -1, हाँ। हाँ, -3 -5 और -1, वो जंप वाला। अब अपन आगे बढ़े। आप सी यू कैन ऑल्सो डू द एक्सपेरिमेंट विथ योर सेल्फ, आपका एग्जाम है तो आप एक्सपेरिमेंट खुद से करना, मेरा एग्जाम नहीं है, ठीक है।
इन द लास्ट वी विल डू ना, क्योंकि मेरे को और भी क्वेश्चंस को है कराना। आगे बढ़े ना। 11th क्वेश्चन। अभी अपन ने इतना गेम खेला ना, अभी आप लोगों ने खूब सारे इनपुट दिए, अब कोई गलती नहीं करेगा। ये वाला इनपुट हमने देखा था, इसमें n-1 देखा था, याद है n-1 वाला? का मतलब 2 से 2 की बात कर रहा है ये। पर भी गलत आंसर दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकला आपके 10 क्वेश्चन। बीसी बीसी एक के आंसर है क्या दोनों? बी और सी, अच्छा दोनों सेम ही है। बट सी में यार ऐसा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा आपका ना। ये गलती यार, ये गलती कर रहे हो दोस्त। दोस्त मेरे दोस्त, ये है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये पोस्टफी इसको आप बोल सकते हो। बटेड कॉमा कह लो आप। तो ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा। ये आउटपुट में नहीं देगा ना आपको, ये गलत है ये। तो सी आंसर होगा। यहाँ पे आपको देगा ये, क्योंकि मैंने की बात कर रहे हैं। आई थिंक बी और सी आपका एक एक जैसा ही है दिखने में। तो बी और सी भी आप इसका आंसर बोल सकते हो, 11 का बी और सी भी कह सकते हो। यस शुभम, ठीक है। आगे बढ़े। अभी देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, अभी इसको अपन ने सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को याद हो तो। स्टेप वाला क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा था, सर स्टेप चाहिए मेरे को तो। अब देखो इसमें स्टार्ट जो है वो ओमिट किया हुआ है, स्टार्ट जो इंडेक्स है वो मिसिंग है। बट ये कह रहा है कि वंस, ये जो इंडेक्स जिस पे स्टॉप होगा ये आपका 1 पे स्टॉप होगा। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। इस स्टेप कह रहा है। रिवर्स के अंदर 50, 40, 30। रिवर्स के अंदर 50, 40, 30। नाइस नाइस योगेश, वेरी गुड। योगेश का अच्छा आंसर आ रहा है, नाइस योगेश। सी और ए सेम थे। सेम है क्या? ठीक है, नाइस। तो भी टिक लगा देते हैं यार। किसने आंसर दिया ये? अनीश ने दिया। नाइस अनीश। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये देखो मैट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया। 2D एरे बोल सकते हो। तो इफ अगर आपने सी या सी प्लस प्लस देखा होगा, तो अपना होता है ना, 2D एरे होता है, 3D एरे होता है, 1D एरे है। इसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको, आंसर विल बी द 7। लेट्स सी सबसे पहले किसने आंसर दिया।
शिवा, यस वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। सी 7 किसने दिया सबसे पहले आंसर? सी 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 ऋतिक, वेरी गुड ऋतिक। सर उसमें स्ट्रिंग रिवर्स से आपके स्टार्ट करना है काउंट। स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है आपके उसमें, स्ट्रिंग रिवर्स हो रही है। आखिरी में देख लेंगे अपन। देखो आ गया, वापस क्वेश्चन आ गया, स्टेप वाला क्वेश्चन आपको आ गया। स्टेप वाला आपका आ गया क्वेश्चन, स्टेप वाला क्वेश्चन। तो 1 2 3 2 वाला स्टेप मतलब 12 से 6 तक, 16 तक, n-1 15 तक, 12 13 14 15। इसके बाद 2 स्टेप बोला था 2। का मतलब ये आ रहा है आपके पास। स्टेप क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। 12 13 14 15 मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये क्या स्टेप बता रहा है? आपका स्टेप बता रहा है। इसका स्टेप बोले तो जंप कह सकते हो, जंप। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को एक छोड़ के एक जंप करना है, इसका मतलब मैं यहाँ आ जाऊंगा। यहाँ आ गया। अब इसके बाद में आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही जंप मैंने किया है। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 12 13 14 15 16 17 18 होता, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक जंप किया ये आया, एक जंप किया ये आया, एक जंप किया ये आया। बट यहाँ पे मेरे पास इतनी वैल्यू है तो 12 एंड 14 एक जंप में मेरे को मिला, आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर आई एम हैविंग अहेड, सो बी विल बी द आंसर 12 14। लेट्स सी बी किसका है, 14 का बी फर्स्ट। बी बी, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन who have given the answer B. It means जो मैं आपको समझा रहा हूँ, something something you are getting inside. Yes, yes, Mitali, please unmute and ask. I will explain. If you have any question, buddy, इसका आंसर और wrong था चंद्रा कुमार. Now it is clear to you, my friend. If you want explanation, I will explain. No problem. ठीक है? एग्जाम में आपको गलती नहीं करनी। यस संदीप। Yes. Could you explain 12th question? 12th question, ma'am, later on I will explain. Na? Oh, okay. In the last, if you have any doubt, see here also you have, can say, doubts. Like in the last we will do everything, the if and else block, whatever you have input we will do. Maybe I can make mistake, I am also human being, and I have learned this language approximately 7 years ago. Right now I'm not so much familiar with the language. Just recently I have seen the basic concept and I'm just giving you an overview. I can also make mistake, so let me know if there is any mistake which I have done. I will also improve myself. Next Okay, sir. question, 15th. Please give answer, please make mistake, so that in exam you can correct yourself. ये क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन वी हैव सीन। इनका किसी का आंसर आया? Yes, Anish, you can unmute. सर व्हाट इफ अगर स्टेप हमारा -2 होता तो? उसमें -2 वाला मेरे हिसाब से -1 वाला देखा है। -1 होता है तो उसमें होता है क्या, स्ट्रिंग को रिवर्स में हम ले जाते हैं। और अगर -2 होता है तो आपकी जो स्ट्रिंग रिवर्स के अंदर वो 2 स्टेप लेता, इन माय ओपिनियन। देखो अगर -1 होता है ना स्टेप में, तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स के अंदर जाएगी आपकी। अगर वो -2 स्टेप में लेके जा रहा है तो रिवर्स में फिर वो आपका स्टेप लेगा, जंप लेगा इन रिवर्स। इन द लास्ट वी विल डिस्कस ना, जो भी आपके इनपुट वगैरह है। 15th सबको क्लियर है ना?
किसी का रॉन्ग आंसर तो नहीं आया? 15th संदीपन योर आंसर इज इनकरेक्ट फॉर 15। ये आंसर दे रहे हैं सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ए एंड सी है क्या दोनों का? ठीक है, यस 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 यस, बोथ इज राइट, बोथ। नहीं यार, ये आंसर नहीं आएगा आपको, ये गलत है, सी आंसर होगा। ये आउटपुट नहीं देगा आपको, आउटपुट नहीं देगा आपको दोस्त। पर 15 देख लेता हूँ मैं ना एग्जाम में, एग्जामिनर और ये यस यस यस, सी इज राइट, तभी था। सी राइट है, ए जिसने दिया है दोस्त गलत है आपका आंसर, ए गलत है। 15 किसने सी दिया है सबसे? संदीपन, वेरी गुड। और सब ए करके आए यार, एग्जाम में गलत कर दोगे। ऋतिक, वेरी गुड ऋतिक। नेक्स्ट रेस्ट, यू मेड लिटिल बिट मिस्टेक, आपको लगा कि यार ये भी सेम है ये भी सेम। देखो आप आउटपुट देखो ना, क्या आपके आउटपुट में ऐसा वैल्यू दिख रहा है आपको यहाँ पे? इन योर आउटपुट ये आउटपुट आ रहा है कि आपका एलपीएच आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल एच एलपीएच आ रहा है, विदाउट एनी स्पेशल सिंबल, विदाउट एनी कैन से इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड। ठीक है, 15 का सी। ओके, मूविंग अहेड। 16, ये क्वेश्चन देखा था भाई अपन ने, सेम क्वेश्चन, लिटिल बिट क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न वी हैव सीन। स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग रिप्लेस स्ट्रिंग रिप्लेस देखा था अपन ने। आई विल ऑल्सो सॉल्व। 1:3 मतलब क्या होता है सर? n-1 का मतलब 1 2। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पिक करनी है आपको, 1 से 2, 1 से 2। इसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? रिप्लेस बाय 99, द न्यू एरे विल बिकम 199 4। तो यहाँ पे लेंथ कितनी थी? 4, न्यू लेंथ कितनी आ गई? 3। 3 कहाँ है? ये रहा, सी, सी नहीं, डी, ये डी, 16 का डी, 16 का डी, फिर से दो है क्या आपके? ठीक है, ए एंड डी, ए एंड डी, इसमें बहुत ऑप्शन सेम आ रहे हैं आपके, ए एंड डी। नाइस नाइस, किसने गलत दिया, किसने गलत दिया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। प्लीज गिव आंसर, otherwise I would have no idea whether you are understanding or not. If you are not understanding, please let me know, I will explain again and again, so that in the examination you don't make any mistake. Let me know please buddy. Okay, see here you can ask question. See, you want to learn, that's why you have joined here. You can watch movie, you can watch Instagram, you can say do anything, but you have given your time here, so I want you to take some learning from this session, so that in examination you don't make mistake. Question 17, लेट्स प्ले विद द माइनस इंडेक्स। देखो आपने क्वेश्चन पूछा था ये माइनस वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया, गुड। -1, -2, -3, -1 से स्टार्ट कर रहा है, ई से स्टार्ट कर रहा है ना, ई से स्टार्ट कर रहा है, ई, बाद में क्या आ रहा है? जी, ई और ई। -1, -2, -3, स्टार्ट इंडेक्स कितना है? -4, ई है।
टॉप इंडेक्स 1 ये जी पे आ जाएगा, जी पे आ जाएगा तो EDG आ रहा आंसर आ रहा है, सर ऑप्शन रॉन्ग है शायद। EDG आ रहा आंसर। आपका क्या आंसर आ रहा है? जी EDG आ रहा है यार, एनीवन? EDG आ रहा है ना? EDG आ रहा है इसमें, और ऑप्शंस नहीं है ना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है ना, थोड़े से आपके इनकरेक्ट है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या आंसर है? क्योंकि एक्सक्लूसिव है ना, एन हमने ये बोला था ना n-1, तो जो भी वैल्यू है -1 करनी है आपको। EDG इसका आंसर हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया दोस्त। ठीक है, 17 मूविंग अहेड। 3 ये क्या पूछ लिया इसने? लेंथ है ना, माई लिस्ट 1 2 3 4 5 लेंथ में 1 निकाल तो 4। 4 बोले तो ई आंसर आ रहा है। ई आ रहा है क्या आपका भी? ई आंसर आ रहा है मेरा तो, इनका। यस, नाइस नाइस, फर्स्ट आंसर गिवन बाय अनिश, वेरी गुड अनिश, ऑल यू हैव गिवन द डी। भावना का भी डी आया, नाइस भावना। रॉक फन का भी डी, नाइस माय फ्रेंड। इट मींस यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट। फिर से कुछ अलग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया ना ये, 19th। ओके 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 ओके, स्टार्ट टू प्ले, स्टार्ट टू प्ले। देखो ये क्या हो रहा है, वेर ए इक्वल टू ई, है ना, मैंने लिख दिया एप्पल, एप्पल। फिर मैंने लिखा वेरिएबल बी इज इक्वल टू ए। अब मैंने लिख दिया कि मान लो बी इज इक्वल टू काउ, और मैं पूछ रहा हूँ ए की वैल्यू क्या है बताओ। ए की वैल्यू तो एप्पल ही रहेगी ना दोस्त, ए की वैल्यू एप्पल थी, बी में आपने ए को असाइन दे दिया, और बी में आप कह रहे हो कि बी की वैल्यू होगी काउ, और ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू तो यही रहेगी। अब ए में क्या पूछ रहा है? जीरो इंडेक्स, ए का जीरो इंडेक्स क्या है? 1 है, आंसर विल बी द 1। इट्स ट्राई टू प्ले, कुछ गेम खेलने की कोशिश की इसने, मेरे हिसाब से ना ये आंसर आएगा। ये क्या करेगा? आपके सेपरेट लिस्ट बनाएगा, सेपरेट कैन से लिस्ट देगा, सेपरेट लिस्ट। इट विल नॉट प्ले विद द सेम, सो बोल सकते हो कि डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट इट विल गिव यू। बी आंसर आएगा, 19 का बी। आपका भी है ना, शैलो कॉपी, शैलो कॉपी है, कहीं सुना था मैंने। शुभम, इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज शैलो कॉपी। शैलो कॉपी वही होता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आधार कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स है, तो आधार कार्ड के जेरोक्स में भी कोई चेंज करते तो ओरिजिनल में तो चेंज नहीं होगा, ऐसा ही है शैलो कॉपी। इसमें क्या मेमोरी एलोकेशन का जो एड्रेस है वो अलग रहेगा ना, सेम नहीं होगा ना, हाँ, कि बोथ अलग विल रहेगा। पॉइंट टू द सेम है। नहीं, रॉक कह रहा है कि दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करेंगे। अगर सेम एड्रेस होगा तो नहीं, तो फिर वो आपका सेम हो गया कॉपी, डीप शैलो कॉपी नहीं, अलग डीप एड्रेस, कॉपी में होगा सर। सेम एड्रेस नहीं होगा आपका। एक नहीं, एंड वो डीप एड्रेस, डीप डीप कॉपी में होगा। सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा शैलो डीप को इन पाइथन, दूसरे लैंग्वेज का पता है।
क्योंकि आपका जैसे ये आता है ना, ये रिएक्ट जीएस, रिएक्ट के अंदर ऑप्शन आता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 20, तो फिर से इंडेक्स वाला आ गया एंड जंप। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मुझे जंप वाला क्वेश्चन चाहिए, जंप वाला क्वेश्चन आ गया। स्टार्ट इंडेक्स, फिफ्टी थर्टी, 30 आ रहा है, 50 30 10 भी आ रहा है क्या आपका? नहीं लेगा ना, 10 तो नहीं लेगा ना, क्योंकि n-1 है, तो एक इंडेक्स पीछे आ जाएगा ये, यहीं तक ही लेगा मेरे हिसाब से ना। एक सेकंड ये देख लेता हूँ मैं ना, मे बी आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। ये 0 में आ रहा है ना, ये लेके आया ना, यहाँ पे 0 था, बट अब ये क्या कर रहा है, रिवर्स में लेके जा रहा है एक स्टेप, एक एक स्टेप को 0 रिवर्स में लेके गया, तो 4 से स्टार्ट करेगा ये, यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, रिवर्स में लेके जाएगा, क्योंकि जो माइनस वाला है वो आपका रिवर्स के अंदर वर्क करेगा। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अब ये क्या है, आपका स्टेप आगे की ओर स्टेप जाएगा। अब बट आपका जो एरे है वो इनिशियली 0 है, ये जो एरे है ये 0 है, तो 0 में क्या है, आपकी जो पॉजिटिव स्टेप है वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव स्टेप लेके आता हूँ, मान लो कि इसको देखो मैं लिखता हूँ 1, तो मैंने लिखा 2, को लिख दिया मैंने 33, इसको लिख दिया मैंने 44, को लिख दिया मैंने 8। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, इसने बोला कि 4 नंबर 0 1 2 3 4, ये वाला ए से स्टार्ट करना है 0 तक। 0 मतलब ये n-1, इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये इतनी लेगा। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको स्टेप जाना है -1, इट मीन्स यू डोंट नीड टू जंप, कोई भी जंप नहीं करना आपको, रिवर्स में वैल्यू ये प्रिंट करेगा, रिवर्स में स्ट्रिंग करेगा। तो a 44 33 2 और 1 तक, बट ये 1 में n-1 हो जाएगा, तो ये रिवर्स में स्टेप। अगर मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ, अब ये क्या है, -2 मतलब a आएगा एंड 33 आएगा, a एंड 33, only 2 will be jump, so it will jump 2 value, a and 33. Okay, I hope now it is clear to you. It is clear ना अनीश? अनीश को आ गया अगर समझ में, तो सबको समझ है। रॉक फॉर फन, it is clear to you my friend also, and Shubham also, it is clear? रॉक फॉर फन एंड शुभम, रॉक फॉर फन कहाँ चला गया? ओके यस गुड। सी देखो, एग्जाम में इजी क्वेश्चन नहीं देगा, वो ऐसा क्वेश्चन देने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो ऐसा क्वेश्चन देगा, बहुत ज्यादा चांस है ऐसा क्वेश्चन देगा।
अगर ये स्टेप नहीं होता आपका तो एरे क्या आता, एम्प्टी आ जाता। अब बट एरे एम्प्टी है तो एम्प्टी को हम यहाँ पे रिवर्स में ले जाएंगे, रिवर्स में फिर वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ओके, तो आंसर विल बी द सेम सी, 50 एंड 30। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन 21। अभी अपन ने देखा था सर एम्प्टी एरे है, उसमें आप फिर भी इंडेक्स पे गेम खेल रहे हो, क्या क्या आंसर देगा, एरर देगा या एम्प्टी देगा या नन 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 देगा? क्वेश्चन 21। ए यस यस यस, अब एग्जाम में गलती नहीं करोगे आप। वेरी गुड भावना, चंद्रा, संदीपन, नाइस। See, you are learning, which is thing I really like. Next question. अब देखो, अब शुरू में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, इन स्टार्टिंग यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, नाउ एवरीवन इज गिविंग द आंसर, इट मींस यू आर लर्निंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। ये एरे के अंदर एरे दे दिया इसने ना, ये देखो, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ऐसे याद कर लो, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। अब आंसर आपका सही आना चाहिए। ये मेरे हिसाब से 100% स्टूडेंट का सही आएगा। क्वेश्चन 22। लिस्ट की आंसर 20। नाइस, एवरीवन हैव गिवन द यस, यू आर गुड, मींस यू आर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिर से स्टेप वाला क्वेश्चन आ गया, स्टेप वाला एक आ रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। देखो जब भी माइनस में हो स्टेप तो इसका मतलब स्ट्रिंग रिवर्स की बात हो रही है। 5 से 1, सिक्स और 4, ये आंसर आ रहा है क्या? आपका क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है मेरा तो यार। क्वेश्चन 22 का बी, ठीक है, तो आपका भी सही है, मेरा भी सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 24। ये हो गया ना, 23 बी था, आपका भी बी है ना, मेरा भी बी आया। ये ए क्यों आया सुभाष का? सुभाष का बी आया, क्या मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या सुभाष? या बी आ रहा है सुभाष, जस्ट यू नीड टू चेक ना, मे बी यू हैव मेक सम मिस्टेक, बी आंसर आएगा। भावना, यस, ओके, भावना का बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, डी ई एल, आई गेस डी एल मीन्स डिलीट, ना याद नहीं है मेरे को, भूल गया मैं। डी एल मीन्स होता है डिलीट होता है, इतना हल्का हल्का याद है। डी एल मीन डिलीट होता है, डिलीट डेटा, डेटा को डिलीट कर रहा है ये। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू, व्हाट विल इज वैल्यू ऑफ डेटा आफ्टर कोड एग्जीक्यूट, ओरिजिनल वैल्यू में बचेगा क्या?
फिर से स्टेप कह रहे हैं ना, ये स्टेप है, देखो स्टार्ट, ध्यान से देखो, डेटा, ये स्टार्ट है, ये नहीं दिया है, एंड है, नहीं दिया है, ये स्टेप है, स्टेप इसने दिया है, स्टेप कितना 2 है। अब इसका मतलब यहाँ से आ जाओ, यहाँ खड़ा हूँ, एक स्टेप, एक स्टेप, ये आया 10, 30, इनको ये कह रहा है कि इसको आप डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दिया तो रिमेनिंग क्या बच गया, 20 एंड 40, 20 40 सी में है, सी आंसर आ रहा है। सी किसका आ रहा है? ओके, अनीश का सी आ रहा है, वेरी गुड यार, तुम सब स्मार्ट हो यार, नाइस। इस जय का भी सी आ गया, वेरी गुड जय, नाइस, स्मार्ट बड़ी स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है, वैल्यू -1, -1 तो ये है, ये आंसर आ रहा है क्या इसका, 25 का बी, ट्रू, ओके, गुड 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 गुड। फर्स्ट आंसर गिवन बाय चंद्रा कुमार, वेरी गुड चंद्रा। नेक्स्ट, ट्वेंटी सिक्स का ए, आपका भी ए आ रहा है दोस्त, वेरी गुड अनीश। शुभम क्या बात है, वेरी गुड, बॉक्स फॉर फन का भी आंसर आ गया, नाइस। 26 हो गया, 27, बस एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसका मतलब आपको लग गया है पता है ना, फिर वी विल स्किप टू अनदर पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में ये वाले जो क्वेश्चन है इसको अपन सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 27 ये लास्ट कर लेते हैं। एक सेकंड देना, पानी पी के आ जाऊंगा ना, 1 मिनट वाटर।
इसका आंसर क्या है? 27 का CD। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, सीक्वेंस वाला ना। मुझे देखना है कि ये रिवर्स में लेके आएगा, मेरे हिसाब से ये रिवर्स लेके आएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, रिवर्स लेके आ रहा है ये। स्टार्ट इंडेक्स मिसिंग है, स्टार्ट जो है वो मिसिंग है, एंड इंडेक्स 2 है और ये रिवर्स में लेके जा रहा है। इसका मतलब रिवर्स से स्टार्ट करेंगे, रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। एंड इंडेक्स क्या है? 2, 0, 1, 2, ये एंड है, ये एंड है। इसका मतलब हमने देखा था n-1, n-1, ये एंड है, एंड मतलब n-1 का मतलब एक पीछे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो 4 और 5 रहेगा, 4 एंड 5। बट ये क्या कह रहा है? रिवर्स में लेके जाओ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो। 5 and 4, आंसर विल बी 5 and 4, ये विल बी द आंसर। बी और सी सेम है, बी सी लगा लेना, 5 and 4, बस मुझे ये देखना था। ठीक है, तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं अनिश ए नहीं है दोस्त, अनिश ए नहीं है, इसका आंसर शायद रॉन्ग आ गया, अनिश ए नहीं है। मैं देखो वापस बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। मान लो कि ये नंबर गिवन है 1, इसने बोला स्टार्ट इंडेक्स जो है वो मिसिंग है, स्टार्ट मिसिंग है, बट एंड इंडेक्स क्या है? 2, ये एंड है। हमें पता है n-1, n-1, बट किस में हो रहा है? यहाँ पे रिवर्स में बात हो रही है। किस में बात हो रही है? रिवर्स में, रिवर्स में बात हो रही है। रिवर्स में मतलब यहाँ पे आना है, तो एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा? 4 and 5, 4 and 5, माई एंड। अब कहाँ से प्रिंट करेगा? यहाँ से प्रिंट स्टार्ट करेगा, रिवर्स प्रिंट करेगा, तो 5 then 4, विल बी द आंसर। क्वेश्चन 28। ठीक है, अब एक बार अपन देख लेते हैं फाइल्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें देख लो। नेक्स्ट वीडियो में देखें, इसी वीडियो में देखना है क्वेश्चन आपको, ये बताओ इसी वीडियो में देखें, नेक्स्ट वीडियो में, सेम, नेक्स्ट में, सेम और नेक्स्ट प्लीज मेंशन है, सेम सेम इसी में कर लेते हैं ना, नेक्स्ट में कौन करेगा, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अज्यूम ए फाइल नेम टेक्स्ट डॉट txt contain the exact content hello world। ठीक है, ओनली 10 मिनट मोर आई विल टेक, सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ 10 मिनट लूंगा, हो जाएगा आपका। आसान सा है, देखो आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, आपको सी लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस आती है, जावा आता है, PHP आता है। सो हर एक में क्या होता है? फाइल रीडिंग होता है। इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर हैविंग फाइल रीडिंग। ठीक है, तो वही चीज आपको करनी है, एक फाइल है उसको रीड करना है, उसमें क्या कंटेंट है? हेलो वर्ल्ड कंटेंट है। किस मोड में ओपन कर रहा है? देखो रीड होता है, राइट होता है, अपेंड होता है, 3 मोड होते हैं, रीड राइट अपेंड। इसमें कोई R प्लस लगा देता है, RW लगा देता है, वो अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इंडेक्स पे गेम खेल रहा है ये। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लगा रखा है, तो आप इसको देख भी सकते हो। इंडेक्स पे गेम खेल रहा है, ये कह रहा है स्टार्ट करना है, स्टार्ट एंड एंड। अब क्या है? पॉइंटर है मेरा, HELLOWO, ये मेरा क्या है? पॉइंटर है, ये यहाँ पे है। इसने कहा कि 3 तक आपको आगे आना है, 3 तक आना है, तो 1, 2, 3, तो मैं ये चीज को प्रिंट कर दूंगा, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, तो ये क्या करेगा? HEL। अब ये इसने बोला कि 2 और रीड करो, यहाँ पे मैं हूं, तो 1, 2, इसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा, तो क्या करेगा? L, आंसर क्या आ जाएगा? HELLO। ठीक है,
बस ऐसे ही इसमें रहता है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, बी। बी आंसर हो जाएगा दोस्त, बी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, एक फाइल है जिसमें एक वर्ड है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और कुछ नहीं, हेलो वर्ल्ड है। उसने बोला रीड में करनी है एफ डॉट रीड लाइन, मतलब वो जो लाइन है, लाइन नंबर 0 कह सकते हो या लाइन नंबर 1 कह सकते हो, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन 4, जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन उसको रीड करना है। फर्स्ट जो लाइन है उसको रीड करना है। फर्स्ट लाइन में क्या है, हेलो वर्ल्ड है, तो ये हेलो वर्ल्ड पूरा का पूरा आपको दिखा देगा। ठीक है, देखो ये हल्का सा है। अब ये लाइन 1 है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। What will be the output of the following Python code? F dot open, रीड मोड में ओपन किया है, आउटपुट F dot रीड लाइंस एंड F dot क्लोज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, रीड लाइन नहीं है, रीड लाइंस है, मल्टीपल है, मल्टी है, मल्टी है। सो इट इज गोइंग टू रीड मल्टीपल लाइंस एंड गोइंग टू स्टोर इन द एरे और लिस्ट, यू कैन से। अब लिस्ट का क्या है, जीरोथ इंडेक्स प्रिंट करें, तो ये क्या, जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, तो जीरोथ इंडेक्स पे आए क्या गया, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इट विल प्रिंट इन द जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, तो ए बी सेम था ना? हाँ, नहीं, बैकस्लैश एन है एक में, बी में, उससे क्या डिफरेंस आएगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ लिखने में हो गया होगा, बट आपका ये रहेगा, लाइन फर्स्ट है। अगर ये यहाँ पे ये लगा देगा ना स्ट्रिप वाला, तो उससे ये हटा देगा, स्लैश को हटा देगा। बट जो क्वेश्चन में वो अलग देगा आपको, स्लैश एन नहीं देगा वो आपको। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, इसका आंसर आप बताओ, इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन फोर्थ का। यू नीड टू गिव द आंसर। यस इट इज, इट मीन स्लैश एन। यूजुअली स्लैश एन रहता है, स्लैश एन में हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, मतलब वो आप बोल सकते हो कि लाइन ब्रेक भी कह सकते हो, लाइन ब्रेक। इसका आंसर दो क्वेश्चन फोर्थ का। ये क्वेश्चन लिंक है, दिस क्वेश्चन इज लिंक टू द एरे इंडेक्स। फोर्थ का क्या आंसर आया, डी। सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर है, अदर स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, ये अभी अपन ने देखा था दोस्त, अगर कोई एरे है, मैंने कहा कि भाई प्रिंट करा दो 1 से लेके 100 तक, तो क्या वो एरर देगा, क्या आपको नहीं देगा ना, वो जहां तक वैल्यू होंगी उन्हीं को प्रिंट करा के देगा। इसने बोला कि जो रीड 15 है, रीड 15 है, वो आप लेके आओ। अब रीड 15 तो सर क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इंडेक्स देखो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 15 में तो एम्प्टी है, एम्प्टी में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे आप देख लो, क्वेश्चन 5, हेलो वर्ल्ड है। आउटपुट आउटपुट में तो 5 ले रहे थे ना, लेकिन जो थर्ड लाइन है कोड की, एफ डॉट रीड 15, बट जो आपका पॉइंटर है ना, वो यहाँ पे है। अब वो आगे की ओर मूव आपका होगा, पॉइंटर आगे आगे मूव करेगा, वो एम तो 15 में एम्प्टी आ जाएगा पूरा। एम्प्टी आ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा अच्छा वो। अच्छा।
ये चीज अपन ने ना यहाँ देखी थी, नंबर 1 में देखा था। यहाँ देखा था ना, ये आपका 3 था, आपने कह दिया कि 1 2 3 HCl। अब ये वापस 2 आए तो ये वापस स्टार्ट इंडेक्स से मूव नहीं कर रहा है। जो लास्ट था ना मेरा पॉइंटर, वहीं से आपका ये आगे बढ़ेगा। हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहा, जो लास्ट मेरा पॉइंटर, लास्ट अपडेटेड पॉइंटर, वहीं से ये आगे मूव करेगा। लास्ट अपडेटेड जो वैल्यू है वहां से आगे बढ़ता रहेगा। इसमें बस ये कर लेना, एफ सीक मतलब कहाँ पे, वेर यू वांट टू सी योर पॉइंटर। आई वांट टू सी माय पॉइंटर एट 6th पोजीशन। आई वांट टू सिक्स माय पॉइंटर एट 6th पोजीशन। नाउ आई वांट टू रीड कंप्लीट लाइन। तो वेर इज माय 6th पॉइंटर? फर्स्ट 1 2 3 4 5 स्टार्ट फ्रॉम 0 0 to 0 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो आंसर विल बी द वर्ल्ड। ये क्या प्रिंट करेगा? वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो आंसर में आपका क्या है? बी, वर्ल्ड प्रिंटर। तो यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, वो मैं इसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हल्का सा देखो, यहाँ पे क्या है? एफ डॉट सीक 4। सीक 4 मतलब 0 1 2 3 4। आप यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, 4 पे खड़ा हूँ मैं। अब इसने बोला एफ डॉट रीड, 3 वैल्यू रीड करनी है, मतलब ओ को रीड करूंगा, स्पेस को रीड करूंगा, और जो है डब्ल्यू उसको रीड करूंगा। क्यों? 3 वैल्यू लास्ट अपडेटेड जो मेरा है पॉइंटर उसको रीड करूंगा। सो इट विल रीड द लास्ट अपडेटेड पॉइंटर। तो ओ एंड डब्ल्यू विल बी द आंसर, ए। 6th क्वेश्चन का ए। का आंसर आप बताओ। आंसर लिख देता हूँ, ए या बी में से आएगा। तो इजी है ना, का आंसर ही आपका लाइन आ जाएगा। फोर से ये रीड करेगा। ये इसमें देखो इजी इजी आपके कुछ है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस है, इसमें कुछ मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो आपको मैं बताऊं। जो मेन था अपना वो ये एमसीक्यूज थे, ये वाले जो एमसीक्यूज थे यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखो। फाइल रीडिंग का मैं ये नहीं बोल सकता कि एग्जामिनर देगा या नहीं देगा फाइल रीडिंग का। हाँ, ऐसा ही कैन गिव, लाइक फाइल रीडिंग में वो आपको एरे दे देगा। इन फाइल रीडिंग हो सकता है कि एरे दे दे आपको कि जो फाइल है उसमें ये वैल्यू रखिए, आउटपुट बताओ आप, ऐसा ही कैन गिव लाइक दिस। So this was the session. In more next session, we will see little bit more advanced question the examiner can give you. I hope you have liked this session. ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपको अच्छा लगा session? It was useful? Please let me know it was useful. You have learned something from here. Okay. Okay, Shivas, I hope you have liked and अच्छे से आप एग्जाम देना यार, क्योंकि एग्जाम में। यस जय। हाँ जय, पूछो सर ना। एक बात बोलना था। सर ये बोल रहा था, एक डीबीएमएस का भी एक सेशन करवाओ ना, जैसे नेटवर्किंग का करवाया था आपने। डीबीएमएस का ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, एक सेशन एसक्यूएल का रख लें अलग से। बट वो वैसा ही करवाना ना जैसा नेटवर्किंग ठीक का है, करवाया था आपने। ठीक है, आई विल ट्राई।